to declare a variable. What is the syntax for creating a variable? Dim variable name as data type. Okay, that will be the syntax. Name three data types used in VB. Integer, string, and int. Okay. Now, today we are going to discuss operators and if then else statement. Book pata na? Now, Hanji, first of all, I'm going to use the control statements. Control statements are used to control the flow of the sequence in which the statements are executed. In a particular block, जैसे button underscore click लिखा है, या कोई भी एक ब्लॉक बनाया, उसमें तो स्टेटमेंट्स जो है वो एक सीक्वेंस में चल रही है, वन बाय वन. बट आई वांट कि एक सीक्वेंस में ना चले, मुझे वो फ्लो को सीक्वेंस को ब्रेक करना है, डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन. कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट चले, अगर फॉल्स है तो वो इग्नोर हो जाए, दूसरा सेट चले. ठीक है, तो मुझे सारी नहीं चलानी है. या कई बार ये होता है कि मुझे एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट को 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिपीट करना है, या एक पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक रिपीट करवाना है. तो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज अ लूपिंग स्टेटमेंट. तो conditional statement and looping statements, they are part of control statements. Control statements means the statements which will help you to control the sequence of statements, flow of the statement. For that purpose, we can use the conditional statement, if then else, and we can also use the looping statements to repeat the set of statements. Okay? First of all, we are going to do the conditional statement. First control statement that we are going to do is if, then, else. You can write in your rough copies. If, then, else. This is a for making decisions. Used for making decisions based on a result of a condition. If then else statement is used for making decisions based on the result of a condition. Condition दी जाएगी, condition का जो result होगा उसके बेस पे decision लेंगे कि हमने कौन सा set of statement execute करना. ठीक है, set of statements can be a single statement, can be multiple statements. Okay. If the condition now I'm going to write this result के spelling ठीक कर लेना बेटा, typing में गलत हुआ. Okay, now syntax. Syntax means जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी सिंटैक्स करा है. सिंटैक्स मींस the way or method to write a statement. The way or method to write a statement. If we do not follow the syntax, there will be an error. अगर dim variable name as data type structure है, syntax है, ठीक है. अगर मैं dim के बाद data type पहले लिखूं, variable name बाद में लिखूं तो गलत हो जाएगा, because we had not followed the syntax. ठीक है, या मैं dim ये यूज नहीं करूं, सीधा मैं लिख दूं a as integer तो भी गलत हो जाएगा, because we had not followed the syntax. बीच में स्पेस नहीं दूं तो भी गलत हो जाएगा, because syntax follow नहीं हुआ. Syntax means the way to write a statement. If you are following the syntax, statement will not give any error. ठीक है? Okay, what is the syntax for if then else? If जो सिंगल लाइन में लिख रही हूँ वो वैसे ही उसी लाइन में आएगा, अपने आप लाइन्स चेंज नहीं करोगे. पैराग्राफ नहीं है, सिंटैक्स है. जैसा एक लाइन में जितने वर्ड्स आ रहे हैं वो एक सिंगल लाइन में आएंगे, जितना वर्ड नेक्स्ट लाइन में जा रहा है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा. इफ कंडीशन then statement. It could be single statement, it could be multiple statements. Else statement or multiple statements and if. जैसे हम बेसिक में यूज करते थे, क्यू बेसिक में यूज करते थे, सेम वैसा ही सिंटेक्स है.
Note down in your rough copies. What is the syntax for using if then else statement? If condition, then statement, else statement, and if. Online students, please note down. Switch on your cameras. Japji, is it clear? Viran? नहीं, मैंने कहाँ लिखा है फिर? कहाँ लिखा है? और मैंने लिखने से पहले क्या बोला है? क्लियर है? नोट डाउन हो गया? Now in this syntax, what we are doing, we are giving condition in the first line. If condition, if the condition is true, अगर इस condition का result true आता है, then the statements which are given in the first set, after then के बाद जो statement लिखी है, they will be get executed. Else वाला portion totally neglect है, वो execute नहीं होगा. Then के बाद जो statement है, वो execute हुई, उसके बाद end if के next चला गया, end if से बाहर आ गया, block से बाहर आ गए. अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो देन के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर हो गई. एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हुई और एंड इफ के बाहर. ठीक है? एंड इफ से बाहर डजंट मीन कि प्रोग्राम फिनिश. वी कैन हैव मोर स्टेटमेंट्स आफ्टर एंड इफ. दे विल कंटिन्यू इन द पर्टिकुलर दैट सीक्वेंस. वो उसी सीक्वेंस में चलेंगी जिस सीक्वेंस में हमने टाइप करी है. ठीक है? एंड इफ डजंट मीन द एंड ऑफ द प्रोग्राम और एंड ऑफ द ब्लॉक. ठीक है? वो सिर्फ इफ ब्लॉक खत्म हुआ है, उसके बाद अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो बिना किसी कंडीशन को चेक किए एज इट इज चलेगा ही चलेगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा. ठीक है जी? क्लियर है? चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैंने दो नंबर्स ले लिए, दो टेक्स्ट बॉक्सेस में. ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू मैंने डाल दी ए में, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू मैंने डाल दी बी में. मुझे चेक करना है दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है. तो कंडीशन प्रोग्राम क्या लिखेंगे, मैं सिर्फ पार्ट ऑफ प्रोग्राम लिख रही हूँ. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी क्या हो गया, कंडीशन. ए ग्रेटर देन बी क्या हो गया, कंडीशन. देन सिंटेक्स फॉलो हो रहा है पहली लाइन का. पहले इफ कीवर्ड आ गया, देन कंडीशन आ गई, देन कीवर्ड आ गया. कीवर्ड मीन्स specific words which are have a particular meaning in a particular language, programming language. ठीक है? Keywords means the words, reserved words, special words which are having a particular meaning. तो वो उनको as a variable name या हम उनको उसी context में use करेंगे, हम कहीं और उसको use नहीं कर सकते. ठीक है? हाँ जी रितेश, what are keywords? What are keywords? Jagjot, what is keyword? I can see कि कितने बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं और कितने बच्चे क्लास में सिर्फ मॉनिटर्स की तरफ ध्यान करके कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं. ये जो काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? What do you mean by syntax? Yes, Kuntas. What do you mean by syntax? Syntax means the way or method to write a statement. What are keywords? Keywords are the special meaning in a programming language. They cannot be used anywhere. What is the other name of keyword? Reserved words. Reserved. They are reserved in the language. They can be used only in the context for which they are meant. Okay? Now, first condition, if condition, then. Next line में क्या लिखेंगे? Statement कि जब मेरा ये condition true हो तो मुझे क्या करवाना है? I want to display a message. First number is greater. ठीक है? मैसेज किस में डिस्प्ले होगा? लेबल में. लेबल में. ठीक है? तो आई कैन राइट लेबल, जो भी लेबल का नेम है, लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. ठीक है?
label 4 dot text equals to first number is greater. उसके बाद क्या आना है? else. कीवर्ड आ गया. अगेन स्टेटमेंट. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अगेन मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है. क्या? label 4 dot text equals to second number is greater. ठीक है जी. और लास्ट में क्या आना चाहिए? एंड इफ. बट इट. अब यही हम उसमें करेंगे. पहली वाली चलेगी, दूसरी वाली इग्नोर हो जाएगी. ठीक है. अगर फॉल्स हो गई तो दूसरी वाली चलेगी, पहले वाली इग्नोर हो जाएगी. हाँ जी. प्रोग्राम नो एग्जीक्यूट करेंगे. टू वेरिएबल, टू नंबर टेक्स्ट बॉक्सेस में डालेंगे. ठीक है. नंबर्स की वैल्यू वेरिएबल्स में डालेंगे. और सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू वेरिएबल में, जैसे कल हमने डाली है. ओके, आई विल शो यू क्विकली. मैं करके दिखा रही हूँ, आप लोग बाद में करना. ये देखो क्या क्या चाहिए. वन बटन. How I am adding the controls? Double click on the control name. One method is this. Second method, click on the control, drag the mouse on the form to place the control. Okay. If the question is, what are the two ways to add controls on a form? One is double click on the form. Double click on control. Second, click on the control and drag it on the form. मैं अभी फॉर्मेटिंग नहीं कर रही हूँ. ठीक है. फॉर्मेटिंग आप लेटर ऑन कर सकते हो. मैं सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर रही हूँ. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट. इसको मैं ब्लैंक कर रही हूँ. ठीक है. और इसका मैंने ऑटो साइज फॉल्स कर दिया. ठीक है जी. हाँ जी. फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंगली रीसाइज कर सकते हैं. ऑटो साइज मीन्स दैट विल हैव द साइज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. ऑटो साइज मीन्स इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. ठीक है. ओके. बटन 1. बटन 1 पे आई एम फाइंड ग्रेटर. ठीक है जी. नाउ इस पे डबल क्लिक करके वी आर गोइंग टू राइट द कोडिंग. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वेरिएबल्स. डिम a कॉमा b एज इंटीजर. जो कोडिंग अभी आपने लिखी है उसके ऊपर ऐड कर सकते हो. प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, नहीं तो नीचे दोबारा लिख लो. प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक. पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करा लिए. डिम a कॉमा b एज इंटीजर. बेटा डेट वाइज प्रॉपर रफ कॉपी बन रही है. डेली जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं डेट वाइज ऑर्डर में, सीरियल ऑर्डर में है. अगर सीरियल ऑर्डर में नहीं है तो रिवाइज कैसे करोगे? हाँ, सिंपल नंबर्स. हाँ, पॉइंट्स वाले नहीं लेगा. पॉइंट्स वाले नहीं लेगा. अगर आपको वो लेने हैं तो मैं डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी. a कॉमा b एज इंटीजर. डबल ले सकते हैं. ठीक है. अगर पॉइंट्स वाले नंबर लेने हैं तो वी कैन हैव द डाटा टाइप एज डबल. ठीक है. देन इट विल टेक द पॉइंट्स. ओके. अभी मैं ले रही हूँ इंटीजर. नाउ a इज इक्वल टू, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू a में डालनी है. क्या करेंगे? a इज इक्वल टू, आगे कल हमने कैसे डाली थी? वैल. कन्वर्ट करो इन नंबर. वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. ठीक है. देन b इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. अब दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू a और b में आ गई.
ठीक है, वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बी इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब वही सेम प्रोग्राम जो हमने पहले इफ कंडीशन लिख चुके हैं, इफ a is greater than b then label 4 dot text equals to first number is greater, else label 4 dot text equals to second number is greater। ठीक है जी, एंड इफ उसने अपने आप ले लिया वैसे स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए। क्लियर, नोट डाउन कर लो, कर लिया? हाँ जी, क्लियर है? नजर नहीं आ रहा है? ओके अब नजर आ रहा है? ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका? शैल आई रन? Okay, click on run button. Sorry, start debugging button. On standard toolbar, form is there. Type the numbers. कर सकते हैं, मैंने कब मना किया? 3 मेथड्स कराए हैं, कुछ भी कर लो। ठीक है जी, मैसेज इसलिए हो गया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, अगर मैं ये चेंज कर रही हूँ सेकेंड नंबर, फाइंड ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। क्लियर? क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द पोर्शन ऑफ ऑपरेटर्स इन बीपी। बोलो जी। सी में टोटल सम नहीं करना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यस जयंत? यस जयंत? मैम बस सिंटैक्स मैम ऐसे है कि एक कंडीशन में लगा दी है कि अगर ये वाला नंबर बढ़ा तो ये डिस्प्ले करवाओ। हाँ जी बेटा, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए बेटा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए क्लियर है? आफ्टर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, take the value of text boxes and store them in the variables, then use those variables for doing calculations. ठीक है, and after the result, after calculation, whatever the result, that can be displayed in the labels. Okay, okay, now operators. What are operators? Not only arithmetic operators. Operators means operators are special symbols. Operators are special symbols used to perform calculations or making comparisons or for checking the logical conditions. तो definition में आपको क्या मिल रहे हैं? 3 types of operators. ठीक है, for doing calculation, for doing comparison, and for doing logical operations. So for doing calculations, we are having arithmetic operators. For doing a comparison, we are having relational operators. And for doing logical comparisons or logical conditions, we are having the logical operators. Saksham, can you please go out? Yes. मैं हाँ वही करवाने लगी. Special symbols used to perform operations in a program. मैं अभी शॉर्ट में डेफिनेशन दे रही हूँ. ठीक है, used to perform operations in a program. Operation can be arithmetic calculation. Operation can be your relational comparison operations, and it can be logical comparisons. Now, 3 types of operators: arithmetic, relational, and logical.
Now arithmetic operators for doing the arithmetic calculations. Basic arithmetic calculations can be addition, subtraction, multiplication, division, integer division and modulus. Now what are these? Addition, plus, we are already using plus symbol, हमने कल use किया. Subtraction, we had already used it also. जो हमने वो फर्स्ट वाला करवाया था जिसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन चारों का ऑपरेशन करे थे. ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया. डिवीजन फॉर डिवाइडिंग द नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स. नाउ कम्स इज इंटीजर डिवीजन. इंटीजर डिवीजन के लिए सिंबल जो यूज हो रहा है दैट इज योर बैकस्लैश. वो फॉरवर्ड स्लैश है. डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैकस्लैश है. Two symbols are there on keyboard, forward slash and backslash. Now backslash से क्या होगा? Integer division will give the integer value after dividing the number. Quotient, अगर आपका quotient points में भी आ रहा है, but it will return only integer without decimal points. ठीक है, sometimes ये होता है हमने calculation करनी है, आंसर अगर points में आए तो उसको integer में convert करके दो, मुझे points नहीं चाहिए. तो for that purpose we can use the backslash, integer division. अगर हम normal division operator लेंगे तो quotient will be in points. ठीक है, it may be in points. तो but अगर integer division लेंगे तो displays only the integer after division without decimal points. ठीक है, अभी करके देख लेते हैं, करवा के देखते हैं. Modulus means remainder. Modulus operator remainder. हाँ जी, रिमाइंडर मीन्स डिवीजन कर रहे हैं. सपोज मैंने 5 डिवाइडेड बाय 3 किया, क्वोशिएंट क्या आया? 1. 1 पॉइंट आएगा. रिमाइंडर क्या आएगा? 2. रिमाइंडर क्या आएगा? 2. 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, नीचे आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 2. Whenever I need the remainder after division, then we will use the मॉड्यूलस ऑपरेटर. अब इसकी जरूरत मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ. प्रोग्राम मुझे फाइंड आउट करना है वेदर द नंबर इज इवन और ऑड. ठीक है, अब इवन और ऑड है, आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है. आप चेक करते हो 2 से डिविजिबल है या नहीं. अब 2 से डिवाइड करके आप क्वेश्चन तो नहीं चेक करते हो, क्या चेक करते हो? रिमाइंडर. दैट मीन्स अगर रिमाइंडर डिवीजन करने के बाद 0 है तो नंबर क्या है? इवन. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉन 0 है तो ऑड है. तो हमें रिमाइंडर चाहिए चेक करने के लिए. फॉर दैट पर्पस वी विल यूज द मॉड्यूलस ऑपरेटर. हाँ, रिमाइंडर, ओनली रिमाइंडर, इट विल गिव रिमाइंडर. क्वोशिएंट लेना है तो हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन. ठीक है, अगर रिमाइंडर लेना है तो वी आर हैविंग द रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, for getting the remainder after division. Clear? Okay. Next is your relational operators. Relational operators means greater than, for comparison of 2 values, for comparing 2 values. जैसे अभी भी हमने किया a is greater than b. अच्छा, सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अभी हमने प्रोग्राम किया कि फाइंड द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स. अगर मैं क्वेश्चन दे दूं फाइंड द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स, तो क्या आएगा? ग्रेटर की जगह पे क्या सिंबल हो जाएगा? स्मॉलर का सिंबल. मैसेज चेंज हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर एंड सेकंड नंबर इज स्मॉलर. ठीक है, हाँ जी, आप दोनों क्या कर रहे हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है. लेस स्मॉलर देन, सॉरी लेस देन, स्मॉलर देन नहीं आएगा, लेस देन ऑपरेटर का नेम है. ग्रेटर देन, लेस देन, देन वी आर हैविंग ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल. ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? ग्रेटर और इक्वालिटी दोनों चीजें चेक करनी है. लाइक मुझे ग्रेट लेना है कि इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन 90 दूंगी तो 90 वाले को ग्रेड नहीं मिल रहा है. आई वांट कि ग्रेटर देन वाले को भी मिले और 90 वाले को भी मिले.
greater than or equal to symbol will be used. So if 90 है तो भी grade A है, अगर 90 से greater है तो भी grade A. ठीक है, तो greater than equal to symbol ऐसे use होगा. Greater than का symbol angular bracket और equal to का sign. Then similarly less than or equal to. If the marks are less than or equal to 40, 40 से less है या 40 है, तो I want to give grade E. ठीक है, then we are having equal to symbol. If A is equal to B, equality check करनी है. If both the numbers are equal or not, so for that purpose we will use equal to. And similarly we can use non-equal to, not equal to, not equal to. इक्वल नहीं है तो ये करे. ठीक है, if A is not equal to B, print message या display message both the numbers are not equal. ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके रिजल्ट चेक करना है कि वेदर जो रिजल्ट आया वो एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. तो नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों यूज हो सकते हैं. ठीक है जी. नाउ देयर आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूजुअली यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशंस. जैसे मैंने कंपैरिजन कर लिया, A इज ग्रेटर देन B, दोनों में से चेक कर लो एक बड़ा है. मेरे पास 3 नंबर है, मुझे तीनों में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है. अगर 3 में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो यानी A जो है फर्स्ट नंबर जो है उसको मैं पहले B से भी कंपेयर करूंगी, मैं C से भी कंपेयर करूंगी. अगर दोनों में से कंपेयर करके दोनों से ग्रेटर है तो मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, है ना. तो अब वहां पे जब कंडीशन मुझे 2 कंबाइन करनी है, इफ A इज ग्रेटर देन B and A is greater than C, and आ गया. ठीक है, and आ गया, so that means and is a logical operator that will combine 2 relational conditions. ठीक है, conditions. अब 3 logical operators are there, तीनों का पर्पस अलग अलग है. and or not. एंड का मतलब बोथ द कंडीशंस जो कंबाइन करी हैं, इफ दे गिव द ट्रू रिजल्ट, द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द कंडीशन विल बी ट्रू. इफ बोथ द कंडीशंस गिव ट्रू रिजल्ट, ओनली देन द होल कंडीशन विल गिव द ट्रू रिजल्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैंने दिया A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C. ठीक है, अब A की वैल्यू 10 है. सपोज मैं वैल्यूज भी ले लेते हैं यहाँ पे. सपोज हाँ, ठीक है, अब A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 8 है. 10 इज ग्रेटर देन 8, 10 इज ग्रेटर देन 5. दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, दैट मीन्स A इज ग्रेटर. तभी पता चला हमें कि दोनों ठीक है. अगर सपोज करो मैंने यहाँ दिया 15, C की वैल्यू 15 है. ना A इज ग्रेटर देन B कंडीशन क्या है, ट्रू है. पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है. तो दैट मीन्स होल कंडीशन बिकम्स फॉल्स, बिकॉज एंड मीन्स बोथ शुड बी ट्रू. ठीक है, तो अब जहां पर मुझे दोनों कंपेयर करने हैं, दोनों नंबर्स में से कंपैरिजन करना है कि बड़ा कौन सा है, तो मुझे एंड ऑपरेटर चाहिए. बिकॉज आई वांट कि दोनों का आंसर अगर ट्रू है देन दैट मीन्स माय फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज और मीन्स ओके, यहाँ पर तो हो गया कि एक दोनों कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू हो गया. एक भी फॉल्स है, दोनों पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई. दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही है, वो तो है ही है. और में क्या होता है, एनी वन कंडीशन इज ट्रू तो होल स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, अब यहां पर अगर सपोज एंड की जगह मैंने और लगा दिया
A is greater than B और A is greater than C, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, बी सीटेड। अब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। अब यहां पर क्या आएगा? 10 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन फॉल्स है, बट इवन देन होल कंडीशन बिकम ट्रू। हाँ ठीक है, तो वहां पे हमें अगर कई बार ये होता है कि मुझे दोनों में से एक चेक करना है, दोनों में से अगर एक भी चीज मिल गई तो मुझे ये एक्शन परफॉर्म करवाना है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, तो और स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? नॉट इज द ऑपोजिट ऑफ द वन कंडीशन। इफ द कंडीशन इज गिविंग मी द आंसर ट्रू, इट विल चेंज इट टू फॉल्स, एंड इफ द कंडीशन इज गिविंग मी द आंसर फॉल्स, इट विल चेंज इट टू ट्रू। ज्यादातर हम प्रैक्टिकल में भी जो प्रोग्राम्स हम करेंगे वहां हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं कह तो रही हूँ अभी हम जो सिंपल प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वहां पे अभी यूज नहीं हो पाएगा, बट आप लगा के चेक कर सकते हो कि वो आंसर ट्रू या फॉल्स दे रहा है। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ द नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। बेटा चेक ही करना उसने कंडीशन दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा, एक है तब भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तब भी तो ट्रू है ही है, एक ट्रू है तब भी ट्रू हो गया। ठीक है, नॉट का बेटा होता यह है कि समटाइम्स हमें ऑपोजिट चाहिए होता है ऑफ द रिजल्ट, कंडीशन का जो रिजल्ट आ रहा है उसका ऑपोजिट चाहिए। हाँ, जैसे अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो मुझे फॉल्स में एग्जीक्यूट करवाना है कुछ, फॉर दैट पर्पस उसके रिजल्ट को निगेट करने के लिए, ऑपोजिट करने के लिए वी यूज द नॉट ऑपरेटर। हाँ, अगर नॉट ऑपरेटर मैंने उसके बाहर लगा दिया तो ठीक है, तो वो फॉल्स, उसका आंसर जो है वो ऑपोजिट कर देगा। क्लियर? दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर बेटा? नोट डाउन हो गए? अटेंडेंस नोट डाउन कर लिए बेटा?